Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today the topic of our class is risk assessment. So for risk assessment, first of all, we should know about the risk. And for risk, we have to understand the safety and the hazard as well. So first of all, what is safety? Safety is to provide free of hazard environment to the world. Safety is the prevention of people, property and environment. The safety of a bike is, safety helmet, gloves, glasses, shoes. These are for the safety of the bike. Okay. So when we are driving a car, what is the safety measure we will take? First of all, safety belt. First of all, we have to inspect the car, the components of the car, or the engine of the car, the tires of the car, the suspension of the car, the brakes, the accelerator, and everything. Also, first of all, the most important thing, when we sit in a car, before that, we have to check whether the water and the oil, the lubricants in the car. So, when you drive the car, you have to wear your seat belt. And what we call this is a personal protective equipment. What we call it? It's a safety protocol. It's a safety protocol provided by the manufacturer of the car. Okay, when you wear the seat belt and unfortunately you have an accident, a minor accident, there will be airbags. Two airbags are in the front, two are on the side and two are on the rear. So it is called general safety. Now come to the point, what is occupational safety? The safety measures or the safety in the workplace is called occupational safety. In other words, to provide free of hazard environment to the workers in the workplace. वर्कर्स को वर्कप्लेस में खतरे से पाक माहौल देना, खतरनाक हैजर्ड किसे कहते हैं? खतरनाक, कोई खतरनाक चीज जैसे आपको खतरा हो सकता है, ठीक है? तो to provide free of hazard environment to the workers in the workplace is called occupational safety, because our workplace safety, these are both of these are same. Workplace safety, occupational safety, because in workplace you work and it's your occupation, so to provide free of hazard environment to the workers in the workplace is called workplace safety or occupational safety. Now, there is a term we have used, hazard. Hazard, now what is hazard? It could be anything that have the potential to cause harm, to give you harm, to provide you harm, to give you injury, to give you damage, to give you property loss. It is called hazard. Okay, now, the electricity in this wire is a hazard, but when I'm not exposed to this hazard, I'm safe. There is no risk. Now come to the risk. Risk is the probability and the severity or the consequences of a potential hazard. The probability or the consequences or the severity of a potential hazard is called risk. In other words, the likelihood of a harm that arises from a hazard is called risk. किसी चीज से आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसको क्या कहेंगे? रिस्क. अभी नुकसान आपको नहीं पहुंचा, लेकिन लाइकलीहुड है, चांसेस है कि आपको नुकसान मिले, पहुंचे या किसी को नुकसान पहुंच जाए, तो उसको क्या कहेंगे? रिस्क. सो risk is the probability and consequences of or from a potential hazard. Understand? Okay, now what is risk assessment? Come to the point. Risk assessment is a formal and systematic process used to, I divided this risk assessment definition in three parts. The first part is identify potential hazard that could harm people, property or environment. Risk assessment is to identify potential hazard in the site, in the workplace, which could provide you injury, damage or loss. So identify potential hazard that could harm people, property or environment, जिससे लोगों को, environment को और people, property और environment, लोगों को और सामान को, जो property है उसको और environment को खतरा हो, इंजरी का खतरा हो या किसी और चीज नुकसान का खतरा हो, property damage का खतरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? Risk assessment. But there are three parts. We have divided in three
main parts. The second part is evaluating the likelihood, severity and consequences of these hazards. Now first point में हमने hazard identify कर लिए. Look at here. Now these hazard will there will be a likelihood, severity and consequences from these hazards. इन खतरनाक चीजों से, इन चीजों से जिन लोगों को खतरा पहुंचता है या खतरे के चांसेस को और सेवेरिटी उसकी जो मतलब नुकसान जो है ना उसको कितना नुकसान होगा और किसको नुकसान होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, evaluating the like in simple words evaluating the risk, because likelihood, severity and consequence, these are all called risk. Evaluating the risk of these hazard, इन चीजों से कितना रिस्क होगा इस चीज को, और एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर्स आर सफिशिएंट और एडिशनल कंट्रोल मेजर आर रिक्वायर्ड टू मैनेज दिस रिस्क. अच्छा, थर्ड स्टेप में ये है कि यू हैव टू डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस. Precautions mean control measures. For every hazard, for every risk, there is a control measure. There is a hazard, so there is a probability of harm from that hazard, which is called risk. There is a hazard. The second thing is a risk of injury from that hazard, and the third thing is control measure for that risk. Control measure for that risk and hazard. First of all, either you will eliminate the total hazard. When you eliminate the total hazard, so the environment is total hazard free and there is no risk. Understand? जब आप hazard को मुकम्मल तौर पर खत्म करते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, मिसाल के तौर पर आप साइड पे जा रहे हैं, यहाँ पे कील पड़े हैं, there are what we call it, कील जो होते हैं ना, जो आपके पाँव में जा सकते हैं, हाँ, nails in English, nails. Okay. सो आप साइड पे जा रहे हैं, आप खतरा ये है कि आपका पाँव जख्मी हो सकता है कीलों से, तो अगर आप वहां पे क्लीन अप ऑपरेशन करेंगे, कंट्रोल मेजर ये है कि आप क्लीन अप ऑपरेशन कर लें. आपने कील वहां से जमा किए और साइड पे रख दिए, सो द साइड इज फ्री फ्रॉम हैजर्ड, सो द हैजर्ड इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द साइड. दिस इज कॉल्ड टोटल एलिमिनेशन. नाउ if there is not a total elimination is not possible, because you are working on the third floor. When you are working on the third floor, so how the hazard will be eliminated? The hazard is, the risk is, the hazard is work at height, and the risk is falling up people, falling up worker. So if there is a risk that you would fall from the third floor and you will be injured, or in severe cases you will be dead. So what are the preventive measures? The safety harness is the preventive measure. The scaffolding is the preventive measure. The guardrail, mid-rail, and the toe board, these are preventive measures. The toe board is for to prevent falling of objects, equipments from the height. So the second step, in the first step, you must eliminate the hazard completely. But if it's not possible, so you must follow the substitution, the engineering control, the administrative control, and the last and the least effective thing is personal protective equipment. अच्छा, वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं. अभी आपने रिस्क असेसमेंट पढ़ा कि ये किसके लिए मतलब इसकी डिफिनीशन क्या है. सो रिस्क असेसमेंट इज अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड इन द वर्कप्लेस that could harm people, property or environment. अच्छा, evaluating the likelihood, severity and consequences of these hazards. अच्छा, evaluating the risk of these hazards is called risk assessment. And the third step, existing control measures are sufficient. आपने ये चेक करना है कि जो existing control, जो पहले से यहाँ पे existing control measures मौजूद है, जो risk assessment में हमने या जो साइट पे हमने implement किए हैं, ठीक है, क्या वो काफी है इन खतरात से निपटने के लिए? वो काफी है. अगर वो खतरात से निपटने के लिए काफी है, तो there is no need of any additional controls. अगर वो खतरात से निपटने के लिए ना काफी है, तो there we must require additional controls measures. You know control measures? Okay, got it? Now come to the risk assessment matrix. Now look at here. The high risk are in red. You know, the red color represent that these are high risk. Yes. And there is a total, these are severe risk. High risk means it is severe. The consequences must be severe. So this is called the risk rating or the profiling of the risk. When you know there is a person which fell down from a 5-foot ladder or a 5-foot
6 foot scaffolding, and there is another person who is working on the first floor. So, and there is another person, third person, who is working on the second floor. Three of them had fallen. So, what is the risk rate? You know, the first which had fallen from the 6 feet will be okay. There will be a minor injury. Minor injury. The person falling from the first floor will have a medium risk because he will be injured. Somehow he will be injured. And the person falling from the second floor, he will be there is a high risk. He can be injured, he can be dead. You know? So these are called the risk rating. रिस्क रेटिंग किसे कहते हैं? अगर एक बंदा काम कर रहा है फर्स्ट फ्लोर, ये जो है ना, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है. अगर ग्राउंड फ्लोर पे एक बंदा काम कर रहा है 5 फुट और 6 फीट पे काम कर रहा है, एक बंदा फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे, एक बंदा सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा है. A person falling from here is severe risk of injury, death. You know, there is a severe risk. A person falling from the second floor, there is a severe risk of injury or death. या तो वो पर्सन वो मर भी सकता है और उसको उसके हाथ पांव ये भी टूट सकते हैं, उसको चोट लग सकती है, गहरी चोट. ओके, सो अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, we will rate it medium risk. The first is severe risk. The second is medium risk because there is a medium risk. Maybe somehow he will be injured. Maybe his उसका हाथ या पाँव टूट सकता है. लेकिन somehow वो जो second floor से गिर रहा है उससे ये कम रिस्क है, कम रिस्क है. Okay, and the person falling from the 5 feet, this is called minor or low risk ऑफ इंजरी. इसको बहुत कम खतरा है कि ये इंजर हो, क्योंकि 6 फुट से आप जब गिरते हैं तो इतनी ज्यादा चोट आपको नहीं लग सकती. लग भी सकती है, ये मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको चोट नहीं लगेगी. 6 फीट हाइट इज कार्ड व्हाट वी कॉल वर्केट हाइट. ओके, तीनों वर्केट हाइट में आ रहा है. ये 6 फीट भी वर्केट हाइट में आ रहा है और फर्स्ट फ्लोर भी वर्केट हाइट में आ रहा है और सेकंड फ्लोर भी वर्केट हाइट में आ रहा है. तीनों वर्केट हाइट में आ रहे हैं. अब कंडीशन सेम है, तीनों का कंडीशन है वर्केट हाइट, लेकिन जो सेकंड फ्लोर से गिरेगा उसको ज्यादा रिस्क है, सेवियर रिस्क है. तो हम ये जो रेड डॉट्स है ना, रेड हाई हाई लिखा हुआ है, ये देखो, these are called severe risk. It's the risk rating. These are the severity, what we call it severity. 1 2 3 4 5. This table is, in this table 1 2 3 4 5, the horizontal row is called severity, and the vertical, the column, is called the likelihood. Look at here, it's called the likelihood. So 1 into 1 is a 1. Here is a 1, and it's called low risk. 3 into 3, 9. It's called a medium risk. You know, look at here. Okay, now 5 into 5, 25. 25 is a high risk activity. It's called high risk activity. So now look at here. These 1 2 3 4 5 6, these are high risk activities, and these are medium, and these are somehow low medium. We call it low medium. Severe, medium, low medium. The yellow means that these are low medium. It could be low or it could be medium, but the green are, these are called low risk. So you will understand this. Yes. You have understand this. Yes. Okay. Now we go further. Now come to the point why we conduct risk assessment. Risk assessment हम क्यों बनाते हैं और क्यों implement करते हैं और क्यों risk assessment हम conduct करते हैं. तो first of all, objectives of a risk assessment. आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि रिस्क असेसमेंट हम क्यों कंडक्ट करते हैं. What are the objectives of the risk assessment? So, to prevent accident, injuries, property damage or loss. Accident, incident, property damage और loss से बचने के लिए हम risk assessment conduct करते हैं. The second point is prevent ill health and diseases. अच्छा, बीमारियों से बचने के लिए, मुख्तलिफ infectious बीमारियों से बचने के लिए
और इल हेल्थ से बचने के लिए हम रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे लाजमी। ओके, द थर्ड, टू इंश्योर लीगल कंप्लायंस। व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस the to follow the safety rules and regulation and policies is called compliance. To not follow the safety rules and regulation and policies is called non-compliance. So legal compliance जो कानून जो गवर्नमेंट जो कवानीन बनाते हैं, जिसको आमतौर पर हम कवानीन कहते हैं, उसको इसको हम लीगल कंप्लायंस कहते हैं। जो कवानीन बनाते हैं गवर्नमेंट, तो उसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे? रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट इज टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। ओके, सिंपली प्रमोट सेफ्टी कल्चर। अच्छा, सेफ्टी कल्चर हमने पढ़ा है, जो पिछले लेक्चर थे हमने उसमें सेफ्टी कल्चर पढ़ा है। व्हाट इज सेफ्टी कल्चर? सेफ्टी कल्चर इज द combined or the shared attitude, beliefs and actions in a workplace is called safety culture. जो वर्कर्स काम करते हैं कंपनी में या वर्क प्लेस में, तो उनका जो कंबाइंड या शेयर्ड एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर भी बंदा कहता है कि यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर आ जाएगा और मुझे जुर्माना दे देगा या मुझे साइड से निकाल देगा, कोई वर्कर ये सोचकर सेफ्टी फॉलो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेफ्टी कल्चर। एंड द पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इज लाइक, अगर कोई बंदा, कोई वर्कर क्या ये सोचकर सेफ्टी फॉलो कर रहा है कि हमें और वर्कर्स और एनवायरनमेंट को और एम्प्लॉयर को इसकी जरूरत है, सेफ्टी को फॉलो करने की जरूरत है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। न कि वो सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर की तरफ से सेफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये नेगेटिव सेफ्टी कल्चर हो गया। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए, अब एक्सीडेंट, इंजरीज, इल हेल्थ से बचने के लिए और बचाने के लिए सेफ्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। ओके, अंडरस्टैंड? टू प्रमोट सेफ्टी कल्चर, टू प्रमोट पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर इन अ वर्कप्लेस, we will implement, we will conduct risk assessment. Okay, now come to the point, what are the steps of a risk assessment? अच्छा, रिस्क असेसमेंट के में कितने स्टेप्स है? देयर आर 5 स्टेप्स इन अवर रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई द हैजर्ड। फर्स्ट स्टेप में आप हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। जो पोटेंशियल हैजर्ड साइट पे आप काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स को, पीपल को, ऑपरेटर्स को और प्रॉपर्टी को कौन कौन से हैजर्ड से खतरा है। ठीक है, तो उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई, उसकी शनाख्त करना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। अच्छा, अब जिन लोगों को इन हैजर्ड से खतरा है, जिन लोगों को इन हैजर्ड से खतरा है, इंजरी का, डैमेज का, लॉस का, डेथ का या डिजीज का, तो वो लोग कौन है एंड हाउ, और कैसे ये इनको खतरा है, कैसे खतरा है। मतलब एक बंदा काम कर रहा है, हैजर्ड से बहुत दूर है, एक्सपोजर बहुत कम है, तो ये तो उनको तो खतरा नहीं है ना। तो जो हैजर्ड के साथ एक्सपोज्ड है, उसको, उनको खतरा है। एंड हाउ मींस कैसे इनको खतरा है। समझ में आ रही है आपको? अब फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, कंट्रोल मेजर। थर्ड स्टेप में हम रिस्क को एवेल्युएट, रिस्क की तशखीस करेंगे, रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, प्रिकॉशन जो है वो डिसाइड करेंगे। इंप्लीमेंट इस स्टेप में नहीं करेंगे, अगले स्टेप में हम इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अच्छा, प्रिकॉशन मींस कंट्रोल मेजर्स। The control measures can be called controls, control measures, corrective actions, precautions. All these are same terms. Okay, it's the same word, control measure. Okay. Now come to the point. The fourth step is record significant findings and implement control measures. अच्छा, जो आपने findings जो आपने रिकॉर्ड किए हैं, जो आप रिकॉर्ड करेंगे, आपके जहन में जो आया है, हैजर्ड आपने आइडेंटिफिकेशन की, हैजर्ड की, फिर उस हैजर्ड से किन लोगों को खतरा है और कौन डैमेज हो, प्रॉपर्टी को क्या डैमेज हो सकता है, तो आपके जहन में जो फाइंडिंग्स है उनको आप रिकॉर्ड कर लें। ओके, आप उनको रिकॉर्ड कर लेंगे और इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर। दिन आप जो इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर आपने डिसाइड किए थे, इससे अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने कंट्रोल मेजर डिसाइड किए थे कि स्लिपरी फर्श है, तो इसका कंट्रोल मेजर क्या होगा? कंट्रोल मेजर क्या होगा? स्लिपरी फ्लोर, we have to wash the floor, we have to clean the floor.
सो हमने डिसाइड किया था कि हम क्लीनिंग प्रोसेस करेंगे, तो क्लीनिंग प्रोसेस हमने उधर डिसाइड किया था, अभी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड में लाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप है। अच्छा, 5th स्टेप जो फाइनल स्टेप है, अपडेट एंड रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। अच्छा, अब सारा कुछ हो गया, हमने 10 12 15 हैजर्ड्स मालूम किए, उनके जो कंट्रोल मेजर है वो हमने डिसाइड भी कर लिए और इम्प्लीमेंट भी कर लिए। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप में हम मॉनिटरिंग करेंगे, रिव्यू, जो मतलब ये रिस्क असेसमेंट है इसको दोबारा रिव्यू करेंगे आफ्टर 3 months, आफ्टर 4 months, and after deciding and implementing. Now come to the point, there are 5 steps of risk assessment. रिस्क असेसमेंट को करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स है। Now look at this picture. In step 1, we must identify the hazard. The potential hazard must be identified. The second step, identify the people who might be harmed and how. Now we have to identify those people who have the risk of harm, who might be harmed and how. How is the process by which they will be harmed by from a hazard. The process or the method by which they will be harmed by a hazard, potential hazard. Okay. The third step is evaluate the risk and decide on precautions. We must evaluate, we must identify the hazards, the risks, and we must decide on precaution. Precaution are the control measures in the third step. In the fourth step, record the significant findings. अच्छा, जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है हम उनको 4 स्टेप में रिकॉर्ड करेंगे एंड इंप्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स। इसमें एक चीज रह गया है, वो है इंप्लीमेंट द कंट्रोल मेजर। जो यहाँ पे हमने प्रिकॉशंस डिसाइड किए थे ना, वो इस स्टेप 4 में हम फिर इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, अच्छा, नाउ रिव्यू द एंड अपडेट एज नेसेसरी। अच्छा, अगर काम के तरीकाकार में कोई तब्दीली आ रही है, ठीक है, कोई नया वर्कर आ रहा है साइट पे, कोई इंजीनियर या कोई डिपार्टमेंट में एचईसी ऑफिसर, उसकी ट्रांसफर होती है वन साइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर जॉब में कोई किसी की जॉब चेंज हो जाती है या कोई एक्टिविटी में कोई नई एक्टिविटी आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें हम रिव्यू करेंगे और अपडेट करेंगे, रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करेंगे दोबारा से, और फिर उसमें हम अपडेट कंट्रोल मेजर्स, रिस्क, उसमें नए हैजर्ड आ जाते हैं, नए रिस्क आ जाते हैं। जब कोई एक्टिविटी चेंज हो जाती है या उसका वर्क मेथड चेंज हो जाता है, तो उसमें नए हैजर्ड आ जाते हैं और उसमें नए कंट्रोल मेजर्स आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर लास्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको रिव्यू करेंगे और अपडेट भी करेंगे। हम इसमें एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल है वो इनफ नहीं है, नए खतरात आ गए हैं, नए हैजर्ड आ गए हैं, तो इससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे, रिव्यू एंड अपडेट करेंगे, नए कंट्रोल मेजर इसमें डिसाइड करेंगे और उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट इट? समझ आ रही है आपको? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेप 1 इज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैजर्ड। कैसे हम पोटेंशियल हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में हम टास्क एनालिसिस करेंगे, एनालाइज द टास्क बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। एक जॉब को शुरू करने से पहले हम एनालाइज, उसको एग्जामिन करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे। हम टास्क को, जो जितने भी टास्क है, हम उसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, फिर हम अलग से हर एक जॉब के को एनालाइज करेंगे। इसको कहते हैं टास्क रिस्क एनालिसिस। टास्क रिस्क एनालिसिस में हम टास्क को एनालाइज करेंगे। काम को शुरू करने से पहले, एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, टास्क को एनालाइज करेंगे और टास्क को हम डिवाइड करेंगे सब कैटेगरीज में। ओके, हाँ, अच्छा, नाउ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी इकट्ठी करेंगे जिससे हमें पता चले कि ये पोटेंशियल हैजर्ड्स है। पोटेंशियल हैजर्ड्स को फाइंड करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, यानी कि तुम्हें 1 सेकंड, इसके लिए आप इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को हमने कंबाइन किया है यहाँ पे और आपको दिखाते हैं। लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अच्छा, हमारे पास जो कवानीन है और जो स्टैंडर्ड्स है आईएसओ के, उन डॉक्यूमेंटेशन को हम चेक करेंगे कि कानून में इसके लिए क्या है, इन हैजर्ड्स के लिए, या कानून में इस काम को करने का कौन सा प्रोसेस है, तरीका क्या है, तो उसमें फिर कौन कौन से हैजर्ड आ सकते हैं। तो फर्स्ट इज लेजिस्लेशन एंड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स। द सेकंड इज मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन मैनुअल सेफ्टी डेटा शीट। सेकंड, हम इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंफॉर्मेशन कहां से लेंगे, मैन्युफैक्चर इंफॉर्मेशन, जो मशीनरीज है, जो इक्विपमेंट्स है जिसको हम यूज करेंगे, ने बनाया होता है एक मैनुअल, उसके मशीनरी के साथ आता है एक मैनुअल। हम उस मैनुअल पे चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से
हैजर्ड हो सकते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे भी इंफॉर्मेशन लेंगे। अच्छा, मैनुअल्स, जो मैनुअल्स है ना, जो कंपनी मैन्युफैक्चर है, हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन हम मैनुअल को चेक करेंगे। एक गाड़ी के साथ मैनुअल आता है, मोबाइल के साथ मैनुअल आता है, सब जो इक्विपमेंट है, हर एक इक्विपमेंट के पास साथ एक मैनुअल आता है। ये कि आप अगर कोई मेडिसिन यूज करेंगे तो उसके उसके साथ मैन्युफैक्चर लेबल आता है, तो इसको लेबलिंग कहते हैं। ओके, अच्छा, नाउ सेफ्टी डेटा शीट। सेफ्टी डेटा शीट्स आर दोस शीट्स, दोस पेपर्स which provide us information about the potential hazards. सेफ्टी डेटा शीट वो डॉक्यूमेंट है, वो शीट्स है जो हमें पोटेंशियल हैजर्ड साइट में पोटेंशियल जो हैजर्ड्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सीडेंट, नियर मिस एंड इल हेल्थ रिपोर्ट्स। अच्छा, हम फिर उसके लिए एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, इल हेल्थ जो पास्ट में हुए हैं, जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं साइट पे, जितने इल हेल्थ मौजूद है, बीमारियों से हमारा वर्कर्स का वास्ता है, जो बीमार है उनका रिकॉर्ड जो मौजूद है पहले से रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट से हम इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, हम एक नया रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, तो हम सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से इकट्ठा करेंगे। ओके, सो सिस्टमैटिक वर्कप्लेस इंस्पेक्शन। अच्छा, जितने भी इंस्पेक्शन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और लोकल इंस्पेक्शन, जो सेफ्टी टीम इंस्पेक्शन करती हैं और जो बाहर थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो वो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। किस वजह से हम चेक कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं पता? तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड। ओके, अच्छा, ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ना, ये हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। जो रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैजर्ड। ओके, अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, कंसल्टिंग द वर्कफोर्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन और कंसल्टेशन में फर्क है। इंफॉर्मेशन वन वे फ्लो ऑफ नॉलेज है, यानी कि एम्प्लॉयर वर्कर को कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वन वे इंफॉर्मेशन है, यानी कि उस साइड से वो कोई राय नहीं मांग रहा, कोई फीडबैक, कोई ओपिनियन। लेकिन इफ देयर इज अ टू वे एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन, व्हाट इज इट इज कॉल्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज किसे कहते हैं? वर्कफोर्स को। एम्प्लॉयर कौन है? सीईओ। अगर दोनों के दरमियान बातचीत होती है या तबादला ख्याल होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कंसल्टेशन। देखो, कंसल्टेशन में टू वे ऑफ एक्सचेंज है और इंफॉर्मेशन में देयर इज अ वन वे ऑफ एक्सचेंज। या एम्प्लॉयर वर्कर्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है या वर्कर का कोई बंदा एम्प्लॉयर को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कंसल्टेशन किसे कहते हैं? सेफ्टी मैनेजर आपके साथ कंसल्ट कर रहा है या सेफ्टी मैनेजर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें फर्क है। ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, द सेकंड इज कॉल्ड कंसल्टेशन। अच्छा, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप में हैजर्ड आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? कंसल्टेशन विद द वर्कर्स। कंसल्टेशन विद द वर्कर्स और वर्कफोर्स। वर्कर्स को, जितने भी वर्कर्स है मुख्तलिफ कैटेगरीज में, उनको हम क्या कहते हैं? वर्कफोर्स। क्या कहते हैं? वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स के साथ कंसल्टेशन करनी है कि आपको किन किन खतरात से मतलब किन किन हैजर्ड से आपको खतरात लाहिक हो सकते हैं। तो वर्कर्स को आइडिया होता है कि हम काम कर रहे हैं, हमें इस चीज से, उस चीज से, इस काम से हमें खतरात लायक हैं, तो वर्कर के साथ आप लाजमी कंसल्ट करेंगे। जब रिस्क असेसमेंट बनाएंगे तो वर्कर के साथ कंसल्ट करेंगे। ओके, अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिविटीज। अच्छा, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है साइट पे, तो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी मैनेजर जाके सब एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, देयर आर 3 बेसिक रूल्स ऑफ सेफ्टी। द फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। When there is an ongoing activity like work at height, confined space, scaffolding, anything, excavation. So, first of all, you must do observation. You must visit the site and you must observe the activity. The second thing is identification of potential hazard and risk. These are 3 principles. No one can tell you, I will tell you. The second thing is identification of potential hazards and identification of what? Risk. The second step is this. And the third step, decide and implement control measures or precautions for that significant risks and hazard. So these are the 3 basic steps. First step में आप observation करेंगे, second step में आप क्या करेंगे? जो hazards है और risk है उनकी शनाख्त करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। एंड द थर्ड स्टेप इज, आप उन हैजर्ड और रिस्क के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल मेजर्स ढूंढेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे।
तो ये बेसिक आपका हो गया। सेफ्टी का मकसद जो है, बेसिक प्रिंसिपल जो है, जिसकी बुनियाद पर सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है कंपनी में, तो वो ये 3 है। फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन है, सेकंड में आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड एंड रिस्क है, एंड थर्ड में डिसाइडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल मेजर्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे तीसरी से आप कहे कि यस, समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, चेक सेफ्टी डॉक्यूमेंट। ऑब्जर्वेशन आपने कर लिए, एक्टिविटीज को आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको पोटेंशियल हैजर्ड के बारे में पता चल गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज चेक सेफ्टी डॉक्यूमेंट। आपने सेफ्टी डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, जितने भी सेफ्टी डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट्स है, जितने भी रिस्क असेसमेंट है, जितने भी जीएसए है, जितने भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जितने भी इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने चेक करने हैं। किस चीज को के लिए? रिस्क असेसमेंट को बनाने के लिए, ताकि उसमें आप पोटेंशियल हैजर्ड जो कि पहले से मौजूद है और जो हमें आगे जिसका खतरा लायक है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट hazards, potential hazard, or potential hazard. We must do all these things. Okay, now come to the point. Who might be harmed? The second step is who might be harmed and how. अच्छा, किन लोगों को खतरा है, किन लोगों को खतरा है, किन ग्रुप्स को खतरा है, किन फर्द को, किस फर्द को खतरा है। एक फर्द होता है इंडिविजुअल, एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है, जितने भी वर्कर्स है, उनको खतरा है। अच्छा, ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स है, शावल ऑपरेटर है, ग्रेडर ऑपरेटर है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर है, क्रेन ऑपरेटर है, इनको क्या है? खतरा है। किस चीज से? हैजर्ड से। अच्छा, जो हैजर्ड आपने पॉइंट आउट किए हैं, फर्स्ट स्टेप में आपने हैजर्ड पॉइंट आउट किए ना, उसके लिए आपने सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उसमें आपने वर्कफोर्स के साथ कंसल्ट किया, आपने हैजर्ड पॉइंट आउट कर लिए। अब सेकंड स्टेप में ये आ रहा है कि इस इन हैजर्ड से किसको खतरा है? तो किसको खतरा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जितने भी वर्कर्स है उनको खतरा है। द सेकंड किसको खतरा है? ऑपरेटर्स। थर्ड स्टेप में क्लीनर्स, जितने भी साइट पे क्लीनिंग का काम होता है, उनके लिए क्लीनर्स होते हैं, उनको भी खतरा है। अच्छा, मेंटेनेंस स्टाफ। मेंटेनेंस स्टाफ कौन होता है? जो रिपेयर करते हैं चीजों को, चीजों की का ख्याल रखते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, उनको मेंटेनेंस स्टाफ कहते हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब कंपनी से कंपनी एक क्लाइंट कंपनी है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर है। क्लाइंट वर्क देता है किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर वर्क देता है सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो अगर क्लाइंट के साथ कोई काम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, या कोई सप्लायर के साथ काम कर रहा है, 4 कैटेगरीज है, 4 कैटेगरीज में बहुत सारे वर्कर्स आते हैं, तो ये इन सब वर्कर्स को खतरा है। किस चीज से? हैजर्ड से। बताया ना यार प्लीज, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप कहेंगे खुद से कि हैजर्ड से, लेकिन आप नहीं बता रहे। अच्छा, जनरल पब्लिक एंड पैसेंजर। जो जनरल पब्लिक है ना, जो, अच्छा इससे पहले विजिटर है, जो विजिटर आते हैं साइट पे, उनका सेफ्टी इंडक्शन भी नहीं हुआ होता, लेकिन वो विजिटर है, उनको एक विजिटर कैप पहनाते हैं, है आर्ट है, और वो साइट पे आते हैं विजिट करने के लिए, उनको भी खतरा होता है हैजर्ड से, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जनरल पब्लिक एंड पैसेंजर। जो जनरल पब्लिक है, जो जिस साइट पे काम हो रहा है, उस साइट के साथ जो मुंसलिक जगह है, जो रोड्स है, जो बिल्डिंग्स है, उनमें लोगों का आना जाना है, होता है ना, उन लोगों को क्या है? खतरा है इन हैजर्ड से, ठीक है। अब लोग भी आपने पहचान लिए, फर्स्ट स्टेप में आपने हैजर्ड को पहचाना, अब सेकंड स्टेप में आपने लोगों को भी पहचान लिया, और ये भी पहचान लिया, ये भी आपने जाना कि इन हैजर्ड से इन लोगों को कैसे खतरा पहुंच सकता है, ये भी आपने सेकंड स्टेप में लाजमी जानना है। ओके, अच्छा, थर्ड स्टेप, अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल्स है, जो ग्रुप्स है, जिनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, मतलब वो वल्नरेबल है, ऑलरेडी वो एक्सपोज्ड है, इनको बहुत ज्यादा खतरा है, वो है यंग पीपल वर्किंग ऑन साइट। जो यंग, जितने कम उम्र के अपराध होते हैं, जो साइट पे काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर आपकी एज 20-25 है, तो आपको भी खतरा है, लेकिन आपको कम खतरा है बनिस्बत उनके जिनका एज 15-16 ईयर्स है। अगर 15-16-17 ईयर्स में या अंडर 18 में कोई काम कर रहा है वो साइट पे, तो उनको ज्यादा खतरा होता है। अच्छा, जिसे हम यंग पीपल कहते हैं, मदर्स एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स। अच्छा, जो 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 औरतें हैं, या मतलब हामला औरतें हैं, जो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट औरत को बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर कोई केमिकल एक्सपोजर हो जाए, या कोई मैनुअल हैंडल करती है, मैनुअल हैंडलिंग, तो अगर कोई भारी चीज उठाएगी तो उसको खतरा होता है ना, तो उसका भी ख्याल रखना है रिस्क असेसमेंट में। इन यंग लोगों के लिए भी आपने क्या करना है? इनके लिए भी आपने ख्याल रखना है, इनके लिए भी अपनी प्रिकॉशन मेजर्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, डिसाइड करने होते हैं। अच्छा, इनको भी मद्देनजर रखेंगे, मदर्स को, माओ को, और जो एक्सपेक्टेड माए है, जो कंपनी में जितनी भी खवातीन काम करती हैं, तो खवातीन में एक होंगी जो मैरिड होंगी, जिनके बच्चे होंगे,
ठीक है। तो जिनके बच्चे होते हैं वो मदर्स कहलाती है। जिनके बच्चे अभी जो हामला है खवातीन, वो एक्सपेक्टेड मदर्स है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड मदर्स उनको बहुत ज्यादा खतरा होता है, और मदर्स जो है उनको भी ज्यादा खतरा होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई खातून काम कर रही है किसी कंपनी में, उनके साथ उनके बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं कंपनी में या फैक्ट्री में, अगर वो काम करते हैं तो उनके छोटे जो बच्चे, कम उम्र बच्चे, उनको ज्यादा खतरा लायक होता है। आप देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं जी, जो ऑफिस में आते हैं, जो वर्क प्लेसेस में आते हैं, उनको ज्यादा खतरा होता है हैजर्ड से नुकसान पहुंचने का। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत अंडरस्टैंड। एक प्रोफेशनल बंदा है, सेफ्टी ऑफिसर है या प्रोफेशनल है, वो तो समझ सकता है कि यार मुझे इस हैजर्ड से खतरा है, मैं अपने आप को किस तरह इस हैजर्ड से महफूज रखूंगा। लेकिन बच्चे को पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, जो एक्सपेक्टेड मदर्स है ना, एक्सपेक्टेड मदर, जो हामला खवातीन है, उनको ज्यादा खतरा होता है। जो ऑफिस आती है, जो वर्क प्लेसेस में आती है, जो फैक्ट्रीज में काम करती है, उनको ज्यादा खतरा होता है नुकसान पहुंचने का। समझ आ रही है आपको? ओके। अच्छा, डिसेबल्ड वर्कर, इस तरह जो माजूर अपराध है, माजूर अपराध आप जानते हैं, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको ज्यादा खतरा होता है। तो वर्क रिस्क असेसमेंट में आप इनका भी ख्याल रखेंगे। अच्छा, तो लोन वर्कर्स, जो लोन वर्कर्स है, आप देखते हैं कि एक साइड पे एक चौकीदार या सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है, एक लोन वर्कर जो 24 घंटे में 12 घंटे शिफ्ट करता है, 12 घंटे, तो वो उसको लोन वर्कर कहते हैं। कैमरा लगा होता है उसको, मतलब वो कैमरे में नजर आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो लोनली वर्क कर रहा है, उसके पास कोई बड़ी सिस्टम नहीं है, कोई उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो अकेले काम कर रहा है। तो खुदा ना खास्ता उसको इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और वो उधर उसको इंजरी हो सकती है, बेहोशी आ सकती है, उस पर कोई अटैक कर सकता है, कोई पैनिक अटैक उस पर कर सकता है, या हम उसे कहेंगे या कि कोई शिद्दत पसंद आ जाते हैं, या कोई डाकू चोर आ जाते हैं, डकैत आ जाते हैं। अगर वो अकेला है तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, क्योंकि वो दूर साइड पे, ये साइट है 20-30 किलोमीटर का, 20-30 किलोमीटर में इसका एक या दो एंट्री गेट्स है। तो एंट्री गेट पे खड़ा है एक अकेला चौकीदार, उसके पास क्या है, एक गन है, और उस पे एक इंडिविजुअल ग्रुप जो है, एक बड़ा ग्रुप उस पे अटैक करते हैं, तो वो कर सकेगा मुकाबला? नहीं कर सकता ना, उसको ज्यादा खतरा करना। मतलब अगर कोई बंदा काम करे कंफाइंड स्पेस में अकेले, तो वो उनके पास अटेंडेंट नहीं है या स्टैंड बाई पर्सन नहीं है, तो उसको क्या है, ज्यादा खतरा लायक होता है। अच्छा, चलते हैं थर्ड स्टेप पे, एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, कंट्रोल में। थर्ड स्टेप में हम जो हैजर्ड है, सिंपल बात है, फर्स्ट स्टेप में हमने हैजर्ड की शनाख्त की, सेकंड स्टेप में हमने लोगों की शनाख्त की जो जिनको उन हैजर्ड से नुकसान पहुंच सकता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब जो हैजर्ड से उससे नुकसान पहुंच सकता है, तो वो कौन कौन से रिस्क है, उन रिस्क को हम एवेल्युएट करेंगे, उन रिस्क की तशखीस करेंगे कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं अगर ये पंखा गिर गया खुदा ना खास्ता। तो इससे यहाँ पे जो क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स है और यहाँ पे जो मौजूद ट्रेनर है, उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क उसको हो सकते हैं अगर ये पंखा उधर से गिरता है। ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम रिस्क को एवेल्युएट करेंगे एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, और उसके लिए फिर प्रिकॉशन कंट्रोल मेजर डिसाइड करेंगे। ओके, मतलब वजह करेंगे, डिसाइड करेंगे, मतलब उसका फैसला करेंगे, उसको जहन में लाएंगे, उसको रिकॉर्ड में लाएंगे कि एक पंखा है यहाँ से गिर सकता है, तो इसके लिए प्रिकॉशन क्या है। इसके लिए प्रिकॉशन ये है कि हम इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पे बुलवाएंगे और वो यहाँ पे हुक को टाइट करेगा, या मैकेनिक को बुलवाएंगे, वो यहाँ पे इसका हुक टाइट करेगा, तो ये रिस्क मिनिमाइज हो गया। ओके, अच्छा, तो रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड एंड टू सेवेरिटी। रिस्क दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक को हम लाइकलीहुड कहते हैं, किसी चीज के वाकई होने के चांसेस को हम क्या कहते हैं, लाइकलीहुड। अच्छा, और सेवेरिटी, मतलब सेवेरिटी ये है शिद्दत। शिद्दत इसे कहते हैं कि एक हादसा होता है, उसमें शदीद किस्म की चोटें लगती है, शदीद जख्म होते हैं। एक हादसा होता है उसमें माइनर इंजरीज होती हैं, मतलब जिसकी शिद्दत कम होती है। तो शिद्दत हम सेवेरिटी हम शिद्दत को कहते हैं। एक मतलब एक एक्सीडेंट हो गया, शदीद एक्सीडेंट हो गया, एक जलजला आ रहा है, एक शदीद किस्म का जलजला आ रहा है। एक का मैग्नीट्यूड है 3.2 लो है, एक का मैग्नीट्यूड है जलजले का 7.8। दोनों इंसिडेंट्स है, दोनों में एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती है, फैटालिटीज होती है, जलजले में होती है ना। अच्छा, एक 3.2 का मैग्नीट्यूड का जलजला आ रहा है, उसमें डेथ्स और फैटालिटीज का रिस्क क्या है, कम है, सेवेरिटी क्या है, कम है। और एक 7.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, उसमें डेथ्स और फैटालिटीज और इंजरीज का
ज्यादा होता है, रिस्क का ज्यादा होता है। तो रिस्क को आपने पहचान लिया। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट। दिस इज द रिस्क टेबल। द रिस्क टेबल 1 2 3 4 5 horizontal row. These are 1 2 3 4 5. This is called the severity. What? Severity, shiddat. And the 1 2 3 4 5, these are called the likelihood, likely chances। इसको हम चांसेस भी कहते हैं, इसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्या यहां पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है। फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, ये सारे कुछ इसमें आते हैं। अच्छा, यहां पे सिवियरिटी आ रहा है। एक 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। अच्छा, ये जो 25 है ये हाई रिस्क हो गया आपके पास। ये दिस इज कॉल्ड रिस्क मैट्रिक्स। व्हाट वी कॉल रिस्क मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज रिस्क मैट्रिक्स फॉर? रिस्क रेटिंग। आप रिस्क को कैसे रिस्क की दर्जाबंदी कैसे करेंगे कि हाई रिस्क है या लो रिस्क है? इसके लिए आप ये करेंगे कि आप ये रिस्क मैट्रिक्स बनाएंगे। रिस्क मैट्रिक्स में ये सिंपल 5 into 5 मैट्रिक्स है। ये 10 into 10 भी हो सकता है, लेकिन ये सिंपल 5 into 5 मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पे। तो 5 into 5 में जो 25 वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे? हाई रिस्क। और जो 9 वैल्यू है उसको हम क्या कहेंगे? मीडियम रिस्क। अच्छा, और जो 1 का वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? लो। अच्छा, इसमें एक और बात भी आपको समझ में आती है। ये जो हाई रिस्क है ये सारे रेड में है, रेड कलर में है। तो इसे क्या कहेंगे? सेवियर रिस्क। और ये सेवियर रिस्क है, ये क्या है? ये अनएक्सेप्टेबल है। यानी कि हम सेवियर रिस्क को 24 आवर्स में क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। सेवियर जितने भी रिस्क है ना उनको हम 24 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है। आप कंपनी में जाके काम करेंगे ना, तो जो सेवियर रिस्क होते हैं ना उनको आप उनके लिए कंट्रोल मेजर सिर्फ 24 आवर्स में इंप्लीमेंट करेंगे। कितने टाइम में? 24 आवर्स में। अच्छा, जो मीडियम रिस्क है these are 3 to 7 डेज में आप इनके लिए कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मीडियम रिस्क है, बिकॉज द सिवियर रिस्क आर अनएक्सेप्टेबल एंड these are also the medium risk are also unacceptable, but these are somehow lower from the severe. So इनको आप लो रिस्क पे ले आएंगे। हाउ मेनी डेज? इन 3 to 7 डेज आपको सेवियर जो मीडियम रिस्क है ना उनको लो पे ले आने के लिए आपको कितना टाइम दरकार होगा? कितना टाइम? 3 to 7 डेज। जो लो रिस्क है ये क्या है? These are negligible और acceptable। जो लो रिस्क है आपके पास 1 into 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सॉरी 1 2 3 1 2 3 and 4, 1 to 4 जितने रिस्क आ रहे हैं आपके पास ये क्या है? लो रिस्क है। और ये नेग्लिजिबल है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। अगर कोई मतलब लेडर पे काम कर रहा है 6 फुट में, तो अगर उसने मतलब सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर कोई 3rd फ्लोर पे काम कर रहा है और उसने सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना है तो क्या होगा? उसको जुर्माना करेंगे, उसको फाइन देंगे, उसको साइड से निकालेंगे। बशर्ते ये कि एम्प्लॉयर ने या सेफ्टी मैनेजर ने उसको सेफ्टी हार्नेस और सेफ्टी हार्नेस का ट्रेनिंग दिया है। अगर नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयर और सेफ्टी मैनेजर जो है ना वो जिम्मेदार है, या सुपरवाइजर है वो जिम्मेदार होगा। ठीक है। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड द रिस्क मैट्रिक्स। नाउ कम टू द पॉइंट। स्टेप 4, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल मेजर। अच्छा, कंट्रोल मेजर आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब आप इसके को एक डॉक्यूमेंटेड शेप दे रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड शेप में आप फर्स्ट स्टेप में हैजर्ड लिख रहे हैं, पोटेंशियल हैजर्ड। सेकंड स्टेप में आप क्या लिख रहे हैं? हु माइट बी हार्म एंड हाउ। थर्ड स्टेप में आप लिख रहे हैं एवोल्यूट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। फोर्थ स्टेप में आप क्या लिख रहे हैं? रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स एंड इंप्लीमेंट द कंट्रोल मेजर। फोर्थ स्टेप में आप उन जो रिकॉर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, जितने हैजर्ड आ रहे हैं, जितने रिस्क आ रहे हैं, जितने कंट्रोल में आ रहा है, आप वो फोर्थ स्टेप में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फिफ्थ स्टेप में फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं फिर? नो, फोर्थ स्टेप में आप फिर उसे आप इंप्लीमेंट भी करते हैं।
जो कंट्रोल मेजर आपने थर्ड स्टेप में डिसाइड किए थे वो फोर्थ स्टेप में आप इंप्लीमेंट करेंगे। गॉट इट? अच्छा, तो अब देर जो कंट्रोल मेजर है उसको आप किस तरह इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए एक हायरार्की है, उसे क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर्स या कंट्रोल्स या कंट्रोल मेजर्स। अच्छा, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर में ये देखिए आप फर्स्ट स्टेप में आ रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में ये है कि आप हैजर्ड को कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं। फिजिकली आप किसी हैजर्ड को कंप्लीट जड़ से, आप यहाँ पे कील पड़े हैं, आप कीलों को यहाँ से उठा के बाहर फेंकते हैं या किसी सेफ जगह पे मुंतकिल करते हैं। ठीक है, तो ये साइड कील से पाक हो गया। या किसी साइड पे यहाँ पे मतलब कोई चीज ऐसी है जो खतरनाक है मिसाल के तौर पर, और आपने उस चीज को उठा के बिल्कुल सिरे से ही खत्म कर दिया, तो क्या हो गया? हैजर्ड एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन इसे कहेंगे। तो एलिमिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एलिमिनेशन है और पीपी है, पीपी लास्ट स्टेप में आता है, इतना थोड़ा स्पेस इसने लिया है, और जो एलिमिनेशन है उसने बहुत बड़ा स्पेस लिया हुआ है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज एलिमिनेशन। हैजर्ड को आप एलिमिनेट करेंगे, पहली कोशिश आपकी होगी कि इस हैजर्ड को जड़ से खत्म कर दे। तो जड़ से खत्म करने को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। अच्छा, सेकंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन। Substitution is replacing a potential hazard with a new one. अगर मिसाल के तौर पर मैं एक साइड पे काम कर रहा हूँ, एक वायर पड़ा है, बिजली का एक केबल है, एनर्जाइज है वायर, और उससे उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग नहीं है, यानी कि वो ओपन है, और उससे क्या हो सकता है? उससे रिस्क ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, मतलब किसी को शॉर्ट लगने का खतरा हो सकता है। ओपन वायर है अगर वो, तो आपने क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है? उसको रिप्लेस करना है वायर को। इलेक्ट्रिशियन आएगा, उस वायर को रिप्लेस करेगा, उस केबल को रिप्लेस करेगा। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। तो आफ्टर एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इज द सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में ये होता है कि आप वर्कर को हैजर्ड से आइसोलेट करते हैं। वर्कर और हैजर्ड के दरमियान आपको वर्कर को हैजर्ड से आइसोलेट करना है, उससे अलहदा करना है। ठीक है, ताकि वर्कर का और हैजर्ड का एक्सपोजर ना हो या कम हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे कोई मतलब एक वर्कर है, वो ग्राइंडिंग मशीन पे काम कर रहा है या कटिंग कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको गार्ड प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे कि जो कटिंग मशीन है या ग्राइंडिंग मशीन है उस पर सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है कि नहीं, अगर उस पर सेफ्टी गार्ड है तो देयर इज अ बैरियर बिटवीन द वर्कर एंड द हैजर्ड, क्योंकि जो उसका व्हील होता है ना, जो टर्निंग व्हील होता है, जो उसमें लगा होता है ग्राइंडिंग मशीन में, ग्राइंडिंग मशीन आपने देखा है ना, कटिंग मशीन में आपने देखा है, यहाँ लोहार की दुकान पे। अच्छा, उसमें जो व्हील होता है वो क्या है? हैजर्ड है। उससे क्या नुकसान हो सकता है? कटिंग, डिसेबिलिटी, आपके हाथ पाँव, आपका आपका सब कुछ ये कट सकता है आपका। इवन ये मैंने ये भी देखा कि लोगों के गले कट गए हैं क्योंकि उसमें सेफ्टी गार्ड नहीं था। उसमें एक गार्ड आता है, तो वो गार्ड बैरियर है। ये इंजीनियरिंग कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल। आपने चेक करना है कि वर्कर और हैजर्ड के दरमियान आइसोलेशन है या नहीं। ठीक है, या बैरियर्स, या जो मतलब अगर एक जगह पे सस्पेंडेड लोड ट्रेन ने उठाया है, तो आप देखेंगे कि नीचे का एरिया बैरिकेटेड है कि नहीं। बैरिकेशन, अगर बैरिकेशन भी एक आइसोलेशन ही है, क्योंकि ये वर्कर उस साइड पे सस्पेंडेड के लोड के नीचे नहीं जा सकता, तो इसे भी हम आइसोलेशन कह सकते हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल। अच्छा, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन में आपका सेफ्टी ऑफिसर आ गया, सेफ्टी सुपरवाइजर आ गया, सेफ्टी मैनेजर आ गया। इसे क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। तो चेंजेस टू द वे पीपल वर्क। अच्छा, फर्ज करें एक साइड पे काम हो रहा है, वहां पे बहुत शदीद गर्मी है, हीट स्ट्रेस का खतरा है। हीट स्ट्रेस किसे कहते हैं? जब बंदे को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और वो गिर कर बेहोश हो जाता है, उसको हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, हीट स्ट्रेस से वर्कर्स को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उनका ड्यूरेशन चेंज करेंगे, मतलब 15 मिनट काम करेंगे वर्कर, 15 मिनट ब्रेक लेंगे, या 20 मिनट काम करेंगे, 20 मिनट ब्रेक लेंगे। इसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। या ये काम यहाँ पे हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है उसका एक्सपोजर, हीट का एक्सपोजर, जो सन का एक्सपोजर है वो वर्कर पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट वर्कर्स पे एक्सपोजर है, तो काम को आप शिफ्ट करते हैं कहाँ पे? किसी छाव वाली जगह पे,
धूप से छाव वाली जगह पे आप काम को शिफ्ट कर देते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। या काम हो रहा है 12 से 3 बजे तक, तो आप 12 से 3 बजे तक छुट्टी दे देते हैं कि 12 से 3 बजे तक आपने काम नहीं करना है। हाँ, तो ये इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन एक फैसला करती है कि 12 से लेकर 3 बजे तक बहुत ज्यादा शदीद हीट स्ट्रेस हो सकता है। हीट स्ट्रेस इज अ व्हाट इज अ रिस्क। और हैजर्ड कौन सा है? हीट। हीट कहां से आ रहे हैं? सन, फ्रॉम सन एक्सपोजर, हीट आ रहा है, वर्कर्स पे डायरेक्ट एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो उससे क्या खतरा हो सकता है? हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस से क्या हो सकता है? बंदा बेहोश भी हो सकता है और डायरेक्ट मर भी सकता है, ठीक है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैसला कर लिया है सऊदी अरेबिया में कि 12 से 3 बजे तक काम नहीं होगा, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अच्छा, लास्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट्स है और दोज इक्विपमेंट्स which the administration or the management will provide to the workers and all the staff to protect one's self। अपने आप को बचाने के लिए जब हम पीपीई यूज करते हैं, पीपीई किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीई, जिसमें हार्ड हेड आ रहा है, ग्लव्स आ रहे हैं, जिसमें ग्लासेस आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं, सेफ्टी शूज आ रहे हैं, जिसमें सेफ्टी वेस्ट आ रहा है, ये बेसिक है। सेफ्टी वेस्ट, हार्ड हेड, सेफ्टी शूज, सेफ्टी ग्लव्स और ग्लासेस, ये क्या है? ये कॉमन पीपीईज है, ये बेसिक पीपीईज है। मैंडेटरी पीपीईज कौन से हैं? वो पीपीईज जो किसी खास मकसद के लिए हम यूज करते हैं, खास एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मैंडेटरी पीपीईज। जैसे कि मास्क हो गया, स्काबा हो गया, फेस शील्ड हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया। फुल बॉडी हार्नेस आमतौर पे वर्कर को रिक्वायर नहीं होता। जब वो वर्क एट हाइट पे काम करेगा तो क्या यूज करेगा? फुल बॉडी हार्नेस। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हो गया। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जो पीपी हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? मैंडेटरी पीपी। एक हो गया आपका बेसिक पीपी। बेसिक पे क्या क्या आ गया? जो हर वर्कर यूज करेगा, हर वर्कर, हर वक्त साइट पे एक्टिविटी के दौरान, वर्क के दौरान हर वर्क ने लाजमी यूज करना है वर्कर ने, वो इसे क्या कहेंगे? बेसिक पीपीज, जिसमें हार्ड हेड, जिसमें हेलमेट, सॉरी, सेफ्टी शूज, गूगल्स, गॉगल जिसे ग्लासेस कहते हैं। अच्छा, और उसमें सेफ्टी वेस्ट आ गया, जो वेस्ट आपने पहना है। उसमें और क्या आते हैं? सेफ्टी शूज। तो ये 5-6 पीपीज ऐसे हैं जो बेसिक पीपी है। और जो स्पेसिफिक पीपीज है वो आपने तब यूज करेंगे जब आप स्पेसिफिक एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट, लेकिन पीपी इज द लीस्ट इफेक्टिव बैरियर। पीपी आप यूज कर रहे हैं, ये लास्ट ऑप्शन है, इससे आपको बहुत कम फायदा होगा, लेकिन एलिमिनेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप चेक करेंगे कि जिन हैजर्ड के लिए एलिमिनेशन पॉसिबल है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रिसिटी पे होता है। ज्यादातर मशीनरीज जो है इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है ना। अच्छा, तो या पीपी, उसके लिए क्या करेंगे? आप पीपी यूज करेंगे। उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, आइसोलेशन, ये करेंगे। ठीक हो गया। पहला हो गया एलिमिनेशन, सेकंड हो गया सब्सटीट्यूशन, थर्ड हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, लास्ट हो गया पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा, तो अब आते हैं रिव्यू एंड अपडेट व्हेन नेसेसरी। ये आपका ये है कि आपने सेफ्टी रिव्यू रिस्क असेसमेंट एज एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर आर इनफ टू मैनेज ऑन दीस रिस्क और एनी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स शुड बी डिसाइडेड एंड इंप्लीमेंटेड। लास्ट में आपने ये देखना है, रिव्यू करना है रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट को, कि अगर काम का तरीकाकार चेंज हो गया या काम की नोयत चेंज हो गई या कोई नया वर्कर उसमें आ गया, नया इंजीनियर आ गया, स्टाफ नया आ गया, तो उसमें फिर हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस लाएंगे, एडिशनल कंट्रोल मेजर इसमें ऐड करने हैं। तो ये लास्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का। और अब जो है ये क्लास मैं फिनिश करूंगा। अब मेरा जो एक स्टूडेंट है मिस्टर यासीन, वो आएगा यहाँ पे और आपको 5-10-15 मिनट के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन देगा रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पे। तो मैं आपने बिल्कुल खामोशी से यहाँ पे बैठना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये आपने लाजमी सुनना है। मैं भी यहाँ पे बैठूंगा और ये सुनूंगा, ठीक है। तो मिस्टर यासीन, कम।